आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। अब की बार 8वीं बार, that is what had happened in the match against India and Pakistan, which was played on 14th of this month at Ahmedabad Narendra Modi Cricket Stadium, which is the largest cricket stadium in the world as far as the capacity is concerned. Over 125,000 people can sit. Other than that, some more can sit on the roof of the stadium to watch the matches. And the final of the World Cup will also be played on the same venue on 19th of November, if my statistical information is correct. So what happened in the match where Pakistan batted first at one stage 155 for the loss of 2 wickets, then a huge collapse took place, 36 more runs for the loss of 8 wickets. So 191 was the score which Pakistan managed to held or made, whatever you want to say, in 42.1 over, if I'm not wrong, or maybe a bit more than that. In reply, India batted fantastically. Rohit Sharma was looking absolutely fantastic. The way he played, he was looking in complete dominance. 86. Rohit Sharma. Kohli played well. Shreyas Iyer played well. Everybody played well. Rahul was also contributed, and India won that match quite beautifully. And then an upset took place, actually. Afghanistan versus England. That was absolute gem of a match, crack of a match, where England did not manage to chase the target, whatever being set by Afghanistan. And in other match, South Africa was hammered by Netherlands. Actually, Netherlands played well in 43-over game. It was a one-sided game at a few stages, not every time. South Africa lost that match by 39, if my mathematical information is correct. It was a 43 overs game where Netherlands batted first, scored 245, and in reply, South Africa could not manage to score that run to win the matches. So 2 upsets actually took place, and as usual, Australia defeated Sri Lanka quite comfortably. In other match, where which took place actually yesterday, it was played, where New Zealand versus Afghanistan battled each other, and Afghanistan win the toss, decided to field first, and in reply, in rotation actually, New Zealand at one stage they were cruising at, everything was just getting down, 110 for 4 at one stage, 109 for 2, and then 2 quick wickets very early, and even 3 quick wicket, I should say, at one stage, 109 for 1, and then 3 very, very quick wickets to put New Zealand in tremendous amount of pressure. But again, then they showed characters. Afghanistani fielders didn't work well yesterday. They dropped so many catches. That's why New Zealand scored 288 in 50 overs for the loss of 6 wickets only. At one stage, it was looking like that they can only score 240, 245. In reply, Afghanistan was never on the top, all out on 139. So that is what had happened in the past, which we have not been able to cover due to some specifically reasons. But again, we are back with the show with none other than Mr. Ram Kishan ji. Hello and welcome back on the show. Good morning. जी हाँ, सभी को सुप्रभात। और कुछ तकनीकी कारण थे जिनके कारण हम नहीं आ पा रहे थे, तो हम आए हैं और क्या क्या उन बीते दिनों में हुआ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको रेडियो टशन के यूट्यूब चैनल पे हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भारत पाकिस्तान मैच की थोड़ी थोड़ी बात की, ज्यादा क्योंकि बात करने से कोई फायदा है नहीं, वो बहुत बीती चीजें लगने लगी हैं, क्योंकि 1 हफ्ता होने को है, जल्दी ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा उस मैच पर बात करने से बेहतर है आगे आने वाले फिक्सचर्स पर बात करें कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान मैच जिस तरह से होना चाहिए था, शायद एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा खराब मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच जो इंटेंसिटी नजर आनी चाहिए थी वो शायद नजर नहीं आई। एक तरफा मैच भारत ने बना दिया। हालांकि अलग बात है, भारत मैच जीता, दैट इज व्हाट वी ऑल वांटेड। Being an Indian, we would have loved India seeing winning
we always love actually. So what actually happened? India won that match quite comfortably. But again, there was no drama, no excitement. Everything was just going one way traffic. was जैसे हाईवे होता है, बस ठीक है जी, चलते जाओ स्पीडली, जहां तक मन करे वहां तक जाओ, जब मन करे कोई ढाबा दिख जाए रोक के खाना खा लो. So it was everything happened. हाँ, क्या लगा आपको? वो रोमांच नहीं आया यार मैच में? जी हाँ, निश्चित तौर से वो रोमांच जरूर नहीं आया, मगर कुछ विवाद जरूर खड़े हो गए. वो पॉसिबल है. जी हाँ, एक्चुअल में जब पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है तो कुछ ना कुछ वो जो है कुछ मुद्दे हो जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे. एक तो आप ने 36 रन के अंदर अपने 6-7 विकेट खो दिए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, सरवाइव नहीं कर पाए भारतीय स्पिनर्स के सामने या भारतीय गेंदबाजी के सामने, एक्सपोज हो गए आप. फिर आपके पास कुछ बचा नहीं था. आपने क्या किया? फिर जी आपने आईसीसी से कंप्लेन की भारत की. जी हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, हमारे कुछ लोगों को वीजा नहीं मिला जी, हम जब हार गए तो भारत में जय श्री राम के नारे लग गए. और जो है इसके पहले एक मैच में पाकिस्तान ने पलटवार किया था श्रीलंका के खिलाफ, आपको याद हो, जिसमें मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की वो साझेदारी थी. 68 दोनों ने बनाए थे. उस मैच में भी एक विवाद हुआ. वो क्या हुआ? उन्होंने कहा जी, मोहम्मद रिजवान जी ने कहा जी, मैं अपनी जीत वो हमास को सपोर्ट करता हूं, जो इजराइल में जो लोग जंग लड़ रहे हैं, मैं अपनी ये पारी मैं उनको सपोर्ट करता हूं. अब आप बताइए कि आप उल्टे पलटे बयान देंगे और उसके बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि आप ये मैच जीत जाएं और फिर आप इसी तरह के बयान दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है. आपकी परफॉर्मेंस ही जज करेगी आप क्या हैं. आप कुछ भी रहें और बहुत सारे किंतु परंतु लगे. मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बनिस्बत की ये इधर उधर के बयान. जी हमें वीजा नहीं मिला, जी यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, है ना. तो ये सारी चीजें हैं. क्या कहा जाए पाकिस्तान के बारे में? नहीं, आदत से मजबूर कुछ लोग होते हैं, तो उसमें आप कुछ कहे और कर भी नहीं सकते. हालांकि पाकिस्तान बेहतर टीम हो सकती है अगर वो अपने क्रिकेट पर केवल फोकस करे, लेकिन उनके पास बहुत सारी और चीजें फोकस करने के लिए है. वो अलग मामला है कि बीसीसीआई के द्वारा आयोजित की गई बायलैटरल सीरीज लग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के गिने चुने लोग थे 6, 8, 10 लोग. और ये देखिए, दोनों देशों का आपसी मसला है, इस पर हम कुछ कहें एज अ क्रिकेट फैन वो ठीक नहीं है. हाँ, मैं हमेशा से मानता हूँ क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहिए, वो एक अलग मामला है, कोई भी खेल हो. लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, दरअसल प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता, क्योंकि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाओगे या आओगे तो पॉलिटिकल पावर जो है इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर उसको अलग रख पाना बड़ा मुश्किल विषय है. और इसलिए भारत शायद उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया. लेकिन हाँ, मेरा अपना भी मानना है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए. कोई धार्मिक नारों वगैरह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. खेल को उसी भावना से खेला जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए. धार्मिक नारों की जहां जरूरत है वहां पे लगाना जरूरी है. आप मंदिर में जाइए, पूजा करिए, मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ग्राउंड में आपको वो सिंपलिसिटी दिखानी चाहिए जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाने जाते हैं. वहां टेढ़ी मेढ़ी चीजें नहीं होती हैं. अच्छे क्रिकेट पे तालियां बजती हैं, खराब क्रिकेट पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं. तो ये चीजें होनी चाहिए. बहरहाल तो एक चीज आप बताइए, फिर काउंटर सवाल है मेरा आपसे. सपोज दैट हम जीते, तो आदमी कम से कम हम अपने हर व्यक्ति अपने इष्ट को मनाता है. मैं 2 मिनट के लिए ये भूल जाता हूँ कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं भूल जाता हूँ. मैं मानता हूँ मैं एक इंसान हूँ. लेकिन उस केस में आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए, यदि मैं जीतता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे सर पे ऊपर वाले का हाथ होगा. नहीं, एब्सोल्यूट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. उस केस में यदि मान लो वहां के लोगों ने ये बात कही कि भारत जीता, जय श्री राम, ठीक है, ये बात इसमें कोई बुराई नहीं है. इससे उनको क्या हर्ट है? बिल्कुल, इसमें बुराई कोई नहीं है. बताइए, हमने उनकी बेइज्जती नहीं की. राइट, हमने उनको खातिरदारी दी, सब कुछ किया. हमने उनसे ये नहीं कहा आप बोलिए जय श्री राम. हमने उन पे नहीं कहा, दबाव नहीं बनाया.
हमारे लोग, कम से कम जो हमारे दर्शक हैं, अगर उनको इस चीज में खुशी मिल रही है, अगर वो जीते हैं, वो अपने भगवान को याद करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज है। नहीं, इसमें एक एंगल जुड़ जाता ना, अगर फिर वहां पे 10 मुस्लिम होते, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है वहां होंगे, क्रिकेट देखने तो गए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू गए होंगे, कई धर्मों के लोग वहां गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि भारत में क्रिकेट को लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, उसकी पूजा की तरह उसको ट्रीट करते हैं। खैर, नवरात्रि चल रहा है, आपको बधाई भी हो तमाम लोगों को। इस बीच से याद भी आया, और चौथा दिन आज शायद है, अगर मैं ठीक हूँ तो 5वां दिन। अच्छा, 5वां। अच्छा, मैं एक दिन पीछे रहता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं याद आ रहा है, क्योंकि अभी मैं पांडे जी के शो में मैंने सुना था। हाँ, एक दिन मैं पीछे रहता हूँ, मेरे को ये पता क्यों नहीं है, मैंने शो कल ही सुना था। हाँ, तो खैर 5वां दिन चल रहा है। नहीं, देखो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि हर कम्युनिटी से लोग हैं, लेकिन हम किसी पे प्रेशर तो नहीं डाल रहे कि आप बोलिए। हाँ, करेक्ट। अच्छा, मान लीजिए दिक्कत ये होती ना, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम कोई नारा लगा देता तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती कि ये तो जी ये नारा लगा रहा है। नहीं, यदि वो टीम जीतती तो जो उनके नारे हैं वो लोग वो भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, मैं इंडियन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम, मैं पाकिस्तानी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। इंडियन मुस्लिम ही मैं मान लेता हूँ भाई। जैसे सपोज दैट कोई भी मुस्लिम हो, उनके यहाँ चलता है जी अल्लाह अकबर। व्हाटएवर एक्चुअली दे फाउंड। क्या गलत है? क्या गलत? अल्लाह अकबर अगर आप बोल रहे हैं और वहाँ पे अगर फिर तो गलत तो कई चीजें हैं। अब जैसे वो जो पारी आई जब एशिया कप में श्रीलंका में जो हुआ, जिसमें बारिश हुई और एक समय भारत 66 पे 4 था, 267 बन गए, और वहाँ पे जब ईशान किशन आउट होता है तो वो उसको चल निकल यहाँ से। बिल्कुल, ये सब चीजें गलत है, इस पर फोकस नहीं होना। बहरहाल हमारा शो खेल पर है, तो हम बहुत आगे इस पर डिस्कस करेंगे, तो कोई फायदा है नहीं। निश्चित तौर से, बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ और मैचों की मैं बात करूँ? हाँ, मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये मैच हुआ, पाकिस्तान वाला मैच हुआ, उसके बाद श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जिसका कोई वो था नहीं, सब जान ही गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा दिया। उसके बाद एक मैच और आया, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। पहले तो 184 रन बनाए अफगानिस्तान ने, और उसके बाद इंग्लैंड को 115 पे आउट कर दिया। मतलब हद होती है। हाँ, और वो मुजीद, राशिद, नबी, सबने विकेट लिए। तीनों ने, नबी ने 2 लिए, मुजीद राशिद ने 3 लिए। और उस मैच की एक खासियत बताऊं मैं, बटलर को और बेस्टो को उनके तेज गेंदबाजों ने आउट किया था। तो ये ना समझे उनके पास स्पिन ही अच्छी है, उनके पास तेज गेंदबाजी भी अच्छी है। अच्छा, उसके बाद एक और उलटफेर, दक्षिण अफ्रीका। मैं तो ये सोच रहा था, और भी लोग सोच रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका को कोई हरा नहीं पाएगा, अजय जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। और एक मैच ऐसा आया, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका का मैच आया। नीदरलैंड ने 245 रन बनाए बारिश से बाधित मैच में। 43 ओवर का ये मैच हुआ और 246 बनाने थे, लेकिन वो बन नहीं पाए। और 38 रन से, यानी 207 पे आउट हुई टीम, 38 रन से उस मैच को जीता। और दोबारा ये कहने का मौका मिला कि बारिश ने दक्षिण अफ्रीका का पीछा नहीं छोड़ा। और कल एक तरफा मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हुए एक शानदार जीत अर्जित की, और वो भी लगभग 149 रनों की जीत दर्ज की। और चौका मार दिया उन्होंने, जिन्हें 4 के चारों मैच जीत लिए हैं न्यूजीलैंड ने। ये हुआ। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये पूरी समरी मैंने बता दी। जो दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच, क्योंकि अफगानिस्तान को तो फिर भी लोग जानते हैं,
टीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच, पहले 245 बनाना वहां से जहां 140 पर 7 थे उनके, 140 पे 7 थे, वहां से बनाना, और उसके बाद जवाब में 246 रन का पीछा करते हुए 207 पे आउट हो जाना। पहले तो पहली पारी के बारे में बताएं और फिर कहाँ चूक हुई और दक्षिण अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्निंग पॉइंट क्या था? नहीं, पार्टनरशिप अच्छी है, एडवर्ड्स ने अच्छी इनिंग खेली, नीदरलैंड के जो कैप्टन है, 68 ऑफ 71 balls 8 runs, right? हाँ, 78 runs, हाँ, that is what was scored by him. तो वो ना एक टर्निंग पॉइंट था, जबरदस्त बैटिंग, मतलब फेयरलेस बैटिंग जिसको कहते हैं। अच्छा, एक समय ऐसा हमने सुबह सुबह ऐसे ही मैं बैंक में बैठा था, अपने स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहा था कि यार, मैंने कहा एक अपसेट कहीं और नजर तो नहीं आ रहा है, तो सबने कहा नहीं न्यूजीलैंड है, कुछ नहीं, अफ्रीका है, कुछ नहीं होगा, जीत जाएगी आराम से। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे एक कलीग है मुन्ना कुमार, मुन्ने उनको कहा यार मुन्ना जी कुछ ऐसा हो सकता है, गड़बड़ हो ना जाए। तो गौतम सर भी थे, वो भी कह रहे थे यार नहीं यार, अफ्रीका है, क्या पता ना भी कुछ हो। बट मैंने कहा देखो, नीदरलैंड ऐसी वैसी टीम नहीं है, एक बार वर्ल्ड कप में उलटफेर कर चुकी 2015 के, आप कैसे भूल सकते हैं उसको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये मतलब पूरी उम्मीद तो नहीं थी मुझे, बट हाँ थोड़ा थोड़ा लगा था कि यार अगर हो गया कुछ तो ये बहुत जबरदस्त उलटफेर होगा, और फाइनली वही हुआ। मजा आया, लेकिन मुझे ना बड़ा मजा आया। तो अफ्रीका जब बैटिंग करने आया, टारगेट कोई ज्यादा था नहीं, लेकिन उनके जो बैटर्स हैं बड़ा कैजुअल लिया उन्होंने। एक मिलर और एक लास्ट के एक बैट्समैन थे, उन्होंने कोशिश थोड़ी की, हाँ महाराज, उन्होंने कोशिश की थोड़ा कि चलो चीजों को मेंटेन किया जाए, छक्के वक्के मारे आखिरी ओवर में, लेकिन उसको कोई मतलब था नहीं उसका, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो मुझे लगता है कैजुअल ज्यादा ले लिया, इसलिए ये शायद टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का। ऊपर के बल्लेबाजों ने उतने रन्स बनाए नहीं, लगातार विकेट्स मिलते गए, और फील्डिंग भी अच्छी थी उस नीदरलैंड्स की। आप ये ना भूलें, कैचेस उन्होंने छोड़े नहीं, जैसे कल अफगानिस्तान ने बहुत कैचेस गिराए, 4-5 कैचेस गिरा दिए, और जब 4-5 कैच आप गिरा देंगे तो मैच गिरना तो संभव है, वो फिर आप उसको टाल नहीं सकते। तो ये था, मुझे लगता है, टर्निंग पॉइंट। मुझे लगता है ये मैच का टर्निंग पॉइंट दक्षिण अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे हिसाब से। जब एडम माकरम जो बोल्ड हुए, मुझे लगता है वहां से दक्षिण अफ्रीका हताश हो गया था, और उसके बाद बेंडरडसन का आउट होना, यानी एक समय 41 पे 2 थे और 46 पे 4 हो जाना। उसके बाद एक 38 रन की साझेदारी हुई, हेनरी क्लासन और डेविड मिलर ने हर संभव प्रयास की वो हार टालने का, लेकिन ऐसा हो ना पाया, और पहले क्लासन फिर यानसन आउट हुए। ओवरऑल 38 रन से वो मैच जीता गया। एक मेरा सुझाव है दक्षिण अफ्रीका के लिए सुनेंगे नहीं वो लोग, फिर भी दक्षिण अफ्रीका चोकर्स कहे जाते हैं हमेशा से। चाहे तो एक मतलब एंड्रिक फेलाग्वायो को वो खिला सकते हैं, और मार्को यानसन को एज ए गेंदबाज भी खिला सकते हैं। वो एक कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में एक डेप्थ आएगी। मैं वही तो आपसे दिन पूछ रहा था ना, फेलाग्वायो है टीम में, अगर है तो उसको खिलाना चाहिए, स्क्वाड में है तो खिलाना चाहिए। तो लेकिन वो लोग मार्को यानसन को एक ऑलराउंडर की तरह यूज कर रहे हैं और अपने प्राइम गेंदबाज खिला रहे हैं। इससे हो ये रहा है, मार्को यानसन एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, यदि उनका दिन है तो ऑलराउंडर में मुझे लगता है वो काम शायद ना कर पाए। हाँ, मुझे भी ये बात लगती है। फेलाग्वायो होते हैं, मुझे लगता है वो यानसन से ज्यादा फलदायी होते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। मार्को यानसन आपके लिए तब तो सही है जब 250 पे आपके 6 हैं, 270 पे 6 हैं, तो यानसन आपको रन बना सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी दिन 70 पे 6 हो जाएंगे, किसी दिन आप जो है 125 पे 6 हो जाएंगे, वहां पे यानसन का रोल मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर चलिए आगे हम चलते हैं। आज भारत और बांग्लादेश के बीच एक और मैच खेला जाना है, पुणे में खेला जाएगा। पुणे में अभी तक कोई मैच हुआ नहीं है इस विश्व कप में, यदि मैं गलत नहीं हूं तो बताइएगा, यदि मैं गलत भी हूं तो पुणे में आज भारत का मैच खेला जाएगा। हाँ,
अभी फिलहाल क्या कहना न्यूजीलैंड चाहेंगे? टॉप पे है, रन रेट को भी उन्होंने मैच कर लिया भारत से कल, जो अफगानिस्तान से उन्होंने क्या क्या बड़ी है, जीत क्या दर्ज की। क्या रन रेट है उनका, जरा बताइए मुझे। रन रेट 1 पॉइंट कितना है? मुझे रन रेट देखना पड़ेगा, तब तक हम डिस्कस करते हैं, मैं रन रेट देख के हाँ आपको बताता हूँ। हाँ 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 जी, देख के बताइए, क्योंकि भारत का रन रेट 1.8 था और इस मैच से पहले न्यूजीलैंड का रन रेट 1.5 था। तो आप सोचिए, तो- बड़ी बड़ी जीत है, तो 40 रन की मिला के, जीत है। जो कल आज बांग्लादेश और भारत का मैच पुणे में खेला जाएगा, उस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल और तमाम सारे मीटरों पर प्रसारित होगा, सुनना ना भूलिएगा दोपहर 2 बजे से। तो इस मैच में शायद सूर्या को मौका मिले, सुनने में ऐसी आ रही है बातें हमारे सूत्रों के हवाले से। तो क्या आपको ऐसा लगता है आज बांग्लादेश कुछ उलटफेर के इरादे से उतरेगा मैदान में? मुझे ऐसा कुछ नजर आता नहीं होता हुआ कि शाकिब अल हसन शायद इस मैच के लिए रिकवर नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा उनका खेलना। जो उनको इंजरी हुई थी दूसरे मैच में जो इससे पहले उन्होंने खेला था, ऐसी स्थिति में हाँ, बांग्ला टाइगर्स को आप हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि वो एक अजीबो गरीब टीम है, कब पलटवार कर दे। अफगानिस्तान की तरह आप माने, उनके पास कई अच्छे बॉलर्स हैं, कई अच्छे बैटर्स भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को थोड़ा सावधानी से खेलना पड़ेगा। अगर भारत की बैटिंग पहले आती, मैं समझता हूँ भारत को कुछ देर सावधानी दिखाने के बाद ताबड़तोड़ बैटिंग करके 350 पौने 400 रन के आसपास बनाने चाहिए। और पुणे का विकेट कोई ऐसा वैसा विकेट है भी नहीं कि वहां बहुत कुछ होगा बॉलर्स के लिए। तो मुझे लगता है ये होगा, अगर भारत पहले बैटिंग ना भी करे, बाद में करे, तो बांग्लादेश को हमेशा से वो भारत बांग्लादेश को 250 से 280-90 के बीच रोकता आया है। तो मैं समझूंगा ये स्कोर अगर बांग्लादेश बना पाता है तो भारत गेम में पूरी तरीके से रहेगा। अगर कुछ इधर उधर नहीं हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 रन पर 3 विकेट गिर गया था, अगर वो ना हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। रही बात न्यूजीलैंड के रन रेट की, तो न्यूजीलैंड का रन रेट अभी जो है फिलहाल 1.923, दैट इज व्हाट द रन रेट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं भारत की बात कर लूं, 1.8 कुछ है, 1.821, yes, plus 1.821, that is what the run rate of India. So New Zealand on top, India on number 2, and if I talk about the third team, 1.385, that is South Africa. Yes, if I talk about Pakistan, I think they are on 4. Yes, they are on 4 with minus 0.137. बस हमें इतनी बात करनी चाहिए क्योंकि वो माइनस में है सब लोग। भारत, अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही प्लस में है। खैर, क्या संभावनाएं दिखती है बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हो सकता है आज? कुछ नहीं, कुछ खोने को है नहीं उनके पास। फेयरलेस क्रिकेट खेलें, ताबड़तोड़ खेलने की कोशिश करें। अगर चल गया तो 3 तुक्का वाली बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चल गए तो बहुत रन बनाएंगे ये लोग। अच्छे बैटर्स हैं इनके पास। संटो, क्या नाम है उस प्लेयर का? शांतो, नजमुल हसन शांतो, यस, शांतो है टीम में, बिल्कुल। महमदुल्लाह, तंजीन हसन है, महमदुल्लाह है, रहीम है, और एक नाम बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, वो लिटन दास। यस, लिटन दास इज अ गुड बैटर एक्चुअली, ही कैन बी वेरी डेंजरस। लिटन दास के बारे में थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। लिटन दास माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक उसी तरह जैसे केशव महाराज माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक उसी तरह से लिटन दास भी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। और जो है माता रानी के जो दुर्गा के 9 रूप हैं, उनकी इस समय पूजा हो रही है। तो भारत को कहीं ना कहीं लिटन दास से सावधान रहना। भाई देखो, माताओं के लिए तो कोई देश वेश होता नहीं है। तो अगर माता की कोई भक्ति कर रहा है तो वो तो उसको अपना पुत्र समझ के आशीर्वाद देंगे ही ना। तो ऐसे में वो आशीर्वाद उल्टा ना पड़ जाए, इस बात का माता को ख्याल तो रखना चाहिए ना कि भाई। लेकिन वही बात है, फिर माता बेचारी ख्याल कहाँ तक रखे, ये तो बताओ। दुनिया पूरी उनकी है। देखो भाई, महाराज ने अपना काम कर दिया था, मुस्लिम महाराज को कोई कह नहीं सकता। नहीं, पूरी दुनिया इन्हीं लोगों की भाई, 9 देवियों की दुनिया है। तो अब ये बेचारी किसको आशीर्वाद दें किसको ना दें, इसलिए माता की ममता बड़ी निर्मल होती है, कोमल होती है, हम सब जानते हैं। और कभी भी वो आपके साथ बुरा हो ऐसा कभी सोचती नहीं है। हमेशा माताएं, वो चाहे भक्ति भाव से आप देख लीजिए या फिर आप अपने घर में देख लीजिए, माताएं हमेशा एक जैसे सोचती हैं दुनिया के सभी पुत्रों के बारे में। ये एक बहुत अद्भुत और
अनोखी चीज है। खैर ये एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहिए, भारतीय टीम में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? सिराज की जगह शामी या I think Shami should given a chance. Shami should be given a chance because if in case something goes wrong till the finals, क्योंकि इंडिया फाइनल में जाएगा ये बात आप लगभग मान के चलिए, कुछ अनहोनी हो जाए तो अलग बात है, क्रिकेट में बहुत कुछ होता रहता है। सेमीज में तो एटलीस्ट जाएगा इंडिया, वहां से फाइनल जाने के चांसेस पूरे हैं, बट सेमीज तक तो जाएगा, ये लगभग आप लिख लीजिए। 4 टीमें मैंने उस दिन बताई थी आपको, अगर याद हो तो, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान में से कोई एक टीम, यही मैंने बताई थी। भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। चौथी टीम कौन सी होगी? वही मैंने बताया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक। कौन? कोई एक। अभी फिलहाल देखो तो ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ वेरी डेंजरस साइड, दे कैन कम बैक क्वाइट कंफर्टेबली। आपको ये नजर आ सकता है इस हफ्ते के अंत तक उनके अगर मैचेस होंगे तो मुझे लगता है 8 पॉइंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब वो कम बैक करेगा। उसे एक मौका मिला जो श्रीलंका ने दिया ना, वो अब चढ़ के खेलेगा, क्योंकि भारत से मैच निकल गया है। हाँ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से भी ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होने बाकी हैं, अगर मैं ठीक हूं तो। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का बाकी है, और मैं आपको ध्यान दिलाता चलूं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच भी अब से 1 आध दिन में होना है, शायद कल होगा या परसों होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैच बाकी हैं, ये आप भूले ना। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका भी शायद बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका हो चुका है, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को राउंड दिया था, बड़े खतरनाक तरीके से हराया था। करेक्ट, याद आया मेरे को। तो खैर ये बताइए, सूर्या की जगह क्या बनती हुई दिख रही है? आई थिंक सो, सूर्य कुमार यादव को भी मौका, क्योंकि अगर आप गेम प्रैक्टिस नहीं देंगे ना, आपका चौथा मैच चल रहा है, आप टूर्नामेंट के बीच में खड़े हैं लगभग, अगर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कराएंगे अपने बैटर्स को या बॉलर्स को, जिनके साथ आपको फाइनल्स में हो सकता जाना पड़े, खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, तो अचानक से आप सूर्य कुमार यादव से या फिर किसी से कुछ एक्सपेक्ट करें तो वो उनके साथ नाइंसाफी होगी कि भाई आप उनसे ये उम्मीद करो कि जी ये तो बस चल जाए और आके 4 विकेट ले ले या 50 रन मार दे 20 बॉलर में, तो ये मुश्किल होता है। आपको मैच प्रैक्टिस देनी चाहिए, और मुझे लगता है ये सबसे सर्वोत्तम मौका है भारत के पास सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन को खिलाने का और शामी जैसे बॉलर्स को एक और मौका देने का। अभी तक इस विश्व कप में शामी को कोई मौके मिले नहीं मिले, बस वही मैं कह रहा हूँ कि मौका देना चाहिए। सिराज से वो चीजें हो नहीं पा रही जिनके लिए उन्हें जाना जाता है, और क्यों ना शामी को सीमिंग ट्रैक पे मौका दिया जाए, जहां पे बॉल थोड़ी मूव करेगी, हिलेगी पहले आधे 1 घंटे में, और वो बुमराह के साथ नए बॉलर या नए मतलब ओपनिंग बॉलर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है शामी को यदि मौका देना है, मैं अपनी बात सोचता हूँ, जो मुझे लगता है उन्हें धर्मशाला में मौका यदि दिया जाए तो ज्यादा सही होगा, है ना। जो हाँ, वो भी सीमिंग ट्रैक है, बिल्कुल, वो भी सीमिंग ट्रैक है, बॉल स्विंग करती है। यहाँ पे बॉल केवल 15 ओवर तक ही हिलेगा, वहां पे कंडीशन मन माफिक होंगी, है ना। तो खैर मुझे लगता है काफी चर्चा हो चुकी है, और अब हमें इंतजार करना चाहिए आज के मैच का। तो इस अंक में बस इतना ही, दीजिए हम दोनों को इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड बाय।